طویل تھکا دینے والی مسافت طے کرنے کے بعد جوں ہی ان کو سرسبز جنگل نظر آیا تو یک لخت بازوں کی حرکت تیز ہوگی۔ وہ جلد از جلد اپنی منزل مقصود پہنچنا چاہتے تھے۔ یہ وہی جنگل ہے جس کے بارے میں راستے میں ملنے والے مسافر پرندوں نے بتایا تھا کہ یہ علاقہ محفوظ جنگل قرار دیا گیا ہے تاکہ پرندے شکاریوں سے محفوظ رہ کر آزادانہ زندگی گزار سکیں اور ان کی نسلیں پھلتی پھولتی رہیں۔ ان کے بازو شل ہو چکے تھے لیکن منزل کو قریب دیکھ کر تیز تیز اڑنا شروع کیا۔ شام کا جھٹپٹا ہو چلا تھا۔ غروبی آفتاب کا منظر بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ صاف شفاف آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے روئی کے گالوں کی طرح تیر رہے تھے۔ جنگل کے وسط میں واقع جھیل کے کنارے وہ اتر گئے، کچھ دانہ دنکا چگا، جھیل کا شفاف ٹھنڈا پانی پیا اور آس پاس کے درختوں کی شاخوں پہ آ بیٹھے۔ طویل تھکا دینے والی مسافت طے کرنے کے بعد بازو شل ہو رہے تھے اور بدن کا انگ انگ دکھ رہا تھا، لیکن دل منزل پر پہنچنے کی خوشی سے سرشار تھے۔ محفوظ جنگل کے مہربان گھنے درختوں کی شاخوں پہ آرام سے بیٹھے تو عطر بیز ہواؤں نے جھولا جھلایا، پتوں نے لوریاں سنائیں، چاندنی درختوں پر اتر آئی اور سائے کی چادر تان دی۔ جھیل میں سونا تیرنے لگا اور جھیل سی آنکھوں میں نیند گہری ہوتی چلی گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو موسم بہت خوشگوار تھا۔ پرندے نے ایک نظر اطراف کا جائزہ لیا۔ سورج کی پہلی کرن مشرقی افق سے جھانک رہی تھی۔ رات کا سکوت ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا فرش زمیں پر تا حد نظر سبزہ بچھا تھا۔ جھیل کے کنارے سبزے پر ہنس کے جوڑے کی نیند کھلنے ہی والی تھی۔ جھیل کے وسط میں کنول کی ہل رہے تھے۔ بگلا بھی پروں میں چونچ دبائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ مگرمچھ کی جس کا آدھا دھڑ پانی میں تھا اور آدھا خشکی پر نیند کے مزے لے رہا تھا۔ ہر طرف سرسبز درخت تھے، برگد، پیپل، ببول، شیشم، نیم، کیکٹس، زیتون، آم، ناریل، سپاری کے ساتھ ساتھ کہیں کیوڑا بھی مہک رہا تھا، کہیں رات کی رانی، رجنی گندھا اور کرشنا چورا بھی کھلے تھے۔ سوسن کی زبان درازیاں بھی تھیں، نرگس کی چشم بازیاں بھی، سنبل کی دراز زلفیں بکھری ہوئی تھیں۔ سورج مکھی اور گلاب مسکرا رہے تھے۔ اتنے پھول کھلے دیکھے تو جی کھل اٹھا۔ پرندے نے ساتھ سوئی ہوئی اپنی مادہ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھا، اس کی گردن پہ بوسہ لیا، چونچ سے اس کے پروں میں گدگدایا۔ مادہ نے ایک بازو لمبا کر کے اور ایک پیر تان کے گویا انگڑائی لی، ہلکی سی آواز نکالی، دونوں درخت سے نیچے اترائے، دانا دنکا چگا اور گھونسلے کے لیے تنکے اکٹھے کرنے لگے۔ لگتا تھا کہ بے سر و سامانی کے دن بیتنے والے ہیں۔ جنگل کے ہر درخت پہ جا کے بیٹھتا، گاتا، گنگنواتا، اپنے گھونسلے میں واپس آتا، مادہ کو بیٹھے دیکھتا تو کھلا اٹھتا، اس کے پروں میں چونچ پھیرتا رہتا۔ کبھی اس کے نیچے رکھے ہوئے انڈوں کو چونچ سے چھونے کی کوشش کرتا تو وہ پروں کو پھلا کر بالکل گول ہو جاتی۔ اسے یوں شرماتا دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو جاتا۔ مستقبل کے سہانے تصورات دل میں لیے باہر آتا اور دیوانہ وار اڑتا پھرتا۔ کبھی پھولوں پہ منڈلاتا، کبھی پھلدار درختوں پہ بیٹھتا اور خوشی کے گیت گانے لگتا۔ ایک روز گاتا گنگناتا زیتون کے درخت کی طرف سے گزرا تو دیکھا کہ بی فاختہ مغموم بیٹھی ہے۔ اس دفعہ پھر کووں نے شرارت کی اور اس کے گھونسلے میں اپنے انڈے رکھ دیے۔ بیچاری فاختہ نے دکھ چھیلے اور بچے نکلے کووں کے تو بڑی رنجیدہ ہوئی۔ سے تسلی تشفی دے کر آگے بڑھا تو بیا اپنے خوبصورت گھونسلے سے جھانک رہا تھا۔ کہنے لگا، بھائی، آج تمہارے ساتھ سیر کو چلتے ہیں۔ دونوں اڑتے اڑتے نیم کے درخت پر بیٹھ گئے اور اس کی شاخوں پر آنکھ مچولی کھیلنے لگے۔ نیم کی سب سے اونچی شاخ پر جھولتے ہوئے بیا نے نیچے دیکھا تو پرندے سے کہا، بھائی، اس درخت میں بڑی بڑی نمکولیاں لگی ہیں، مجھ سے بھی بڑی، میں نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھیں۔ پرندہ یہ سن کر نیچے آیا، دیکھا کہ ہرے ہرے کریلے لٹک رہے تھے۔ نیم کے درخت پر کریلے کی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ پھر اور آگے بڑھے، ببول کے درخت میں مٹی کی شاخیں پھوٹتی نظر آئیں۔ تجسس پیدا ہوا۔ اس نے سوچا، یہ کیکر ہے یا مٹی کا درخت؟ چونچ ماری مٹی جھڑ گئی تو پتہ چلا کہ اس زمین پر سر سبز درختوں کو بھی دیمک لگ جاتی ہے، اور آگے چلا تو دیکھا کہ جہڑبیری کے درخت پر امر بیل پھیل رہی ہے۔ آج اس نے جو کچھ دیکھا اس سے پریشان سا ہوا۔ جلدی جلدی اڑتا ہوا اپنے گھونسلے میں پہنچا۔ آنڈوں کو دیکھا، آپ نے ہی تھے درخت کا جائزہ لیا۔ دیمک ابھی نہیں لگی تھی، البتہ تنے پر امربیل اگنا شروع ہو گئی تھی۔ جنگل کی رت کچھ بدلی بدلی سی لگتی تھی۔ پتہ جہڑ کا موسم آ گیا، شاخوں پہ پھول تھے نہ پھل۔ پرندے درختوں سے اتر کر مٹی اور گھاس میں دانہ دنکا تلاش کرتے تھے جو اب بہت کم رہ گیا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا، جو کچھ کسی کی چونچ میں آ جاتا جھپٹ کر چل دیتا۔ سیدھے سادھے معصوم پرندے جو چھینا جھپٹی کے عادی نہیں تھے، ٹنڈ منڈ شاخوں پر خالی پیٹ اداس بیٹھے رہتے تھے۔ اب جنگل کے پرندے کم ہونے لگے تھے۔ پرانے شکاری نہ جانے کن راستوں سے جنگل میں آتے تھے اور نئے جال سے سینکڑوں پرندوں کو پھانس کر لے جاتے تھے۔ کوئی پرسان حال نہ تھا۔
परिंदा नदी किनारे उतर आया और टहलने लगा। पानी में हलचल हुई। मगरमच्छ बाहर आया। आधा धड़ उसका पानी में था और आधा खुश्की पर। कहने लगा, मुझसे परिंदों की ये बदहाली और बेबसी देखी नहीं जाती। और ज़ारू कतार रोने लगा। इतना रविया कि आंसू टप टप गिरने लगे और मुंह फैलता चला गया। परिंदे ने कुछ महसूस किया और तेजी से उड़कर शाख पे जा बैठा। मफलूक उल्हाली बढ़ती जा रही थी और जंगल में शिकारियों की आमदोरफत भी। एक शाम परेशान हाल परिंदों ने मिलकर फैसला किया कि जंगल के हालात पर उल्लू से मशूरा लेना चाहिए। परिंदे पीपल के दरख्त पर जमा हुए। सबसे ऊंची शाख पे बैठा उल्लू मुराकबे में गरक था। सबने मिलकर उसको बप्ता सुनाई, जंगल के हालात बताए, मशूरा तलब किया, लेकिन वो खामोश बैठा टुक टुक देखता रहा। परिंदे ये सोच के वापस चले गए कि गालिबन वो उन मसाइल पर गुरूफ कर रहा है। महाउट की फुवार पड़ी तो ख्वाबिदा सब्जे ने आंखें खोलें। रफ्ता रफ्ता दरख्तों पे कौंपलें फूटने लगीं और हरे भरे दरख्त बहार के नगमे गुनगुनाने लगे। उसके घोंसले में भी बहार आ गई। अंडे चटखे और 5 कलियां फूटें। तमाम रेशा दवानियों के साथ एक बार फिर पपैहे की हो, कविल की कूक और बुलबुल के नगमे गूंजने लगे। वो तमाम दिन जंगल के गौशे गौशे से खुराक इकट्ठी करता और नन्हे परिंदों को चुगा देता जो अपनी चोंच कहोले उसके मुंतजर रहते थे। इधर शाखों पे कलियां आएं, उधर उनके लूथड़े जैसे जिस्म पर परों की कलियां निकलना शुरू हो गईं और वो खूबसूरत परिंदे का रूप धारने लगे और घोंसले से बाहर निकलने के लिए पर तोलने लगे। आज पहली बार वो घोंसले से बाहर की दुनिया देखने वाले थे। जिस बहे शौक ने सारी रात बेचैन रखा। थोड़ी थोड़ी देर में आंख खुल जाती। चुपके चुपके सरकते हुए गर्दन बाहर निकाली तो मिश्रकी उफ़क़ से अंधेरे की चादर से रखती जा रही थी। चांद झील में नहा रहा था। उसे देखकर कनवल की कलियां मुस्कुराएं। फिर खलखला के हंस पड़े तो फूल बन गए। हंस का जोड़ा पानी में उतर गया। मरगाबियां चहल कदमी करने लगे। जंगल में मोर नाचा। पपीहे ने तान लगाई। कोयल ने क्वकना शुरू किया। चुड़ियां चहचहाने लगे। कंजशिक के गले में घुंघरू खंकने लगे। आरजुओं का जंगल भी क्या जंगल होता है कि रुत्तें एक साथ आ जाती हैं। चनार ने ताली बजाई तो गलों की महकार लिए नसीमे सहर का पहला झोंका चुपके से आया और नस नस में खुशबू रच गई। बगला परों में चोंच दबाए आंखें बंद किए खड़ा था। पानी में सिरसराहट हुई। कौंदे की तरह लपका और मुछली को निगल गया। इसी लम्हे सूरज की किरणों ने लपक कर झील में नहाते चांद को निगल लिया और सुबह हो गई। सुबह होते ही परिंदे घोंसले से बाहर आए और उनके साथ नन्हे परिंदे पहली बार हवा के दोष पे सवार होकर सब्जे पे उतरे, जहां फाख्ता भी थी, तोते भी थे, मैना है भी थी। तोते उन्हें सबक पढ़ाते, मैना कस्से सुनाती। परिंदे उन्हें अपने साथ ले जाते, जंगल के रास्ते दिखाते, परवाज के तरीके समझाते। अब वो जंगल के माहौल से मानोस हो गए थे। लापरवाही से इधर उधर घूमते रहते। कई दिन से एक चील उनकी ताक में थी। मौका मिलते ही झपटी और एक नन्हे परिंदे को पंजों में दबूच कर ले गई। बाकी 4 सहम कर रह गए। माँ ने देखा तो उसका कलीजा हिल गया। दौड़ी आई और उन्हें अपने परों में छुपा लिया। दोनों परिंदे बच्चे के यूं जीते जी उठ जाने पे बहुत मगमूम थे। गो के नन्हे परिंदे अभी कमसिन थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि उन्हें जिंदगी के खतरात से बाखबर होना चाहिए। दरख्तों से उनका तारुफ कराया, जंगल के इसरार समझाए। कहने लगा, नन्हे परिंदों, क्योड़े का दरख्त ना बन जाना कि बीसाखियों के सहारे खड़ा रहता है। अपने कदमों पे जमे रहना, सुपारी के दरख्त से सीखो। ना ही सूरजमुखी बन जाना कि हमेशा सूरज की तरफ देखता हूं है और उसके साथ ही अपना रुख बदलता रहता है। अपने अतराफ से बेखबर, इसीलिए हमेशा जर्द रू रहता है। सुर्ख रू होकर जीना गुलाब से सीखो, जो कांटों के बीच में मुस्कुराता है। जब से शिकारी नजर आने लगे थे, जंगल का माहौल बदलता जा रहा था। कभी कभी धमाकों की आवाजें आती, उड़ते हुए परिंदे गिरे जाते और तड़पने लगते। एक रोज मीना लरजती कांपती आई। परिंदा उसे इस हाल में देखकर कहने लगा, खैर तो है बी मीना, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मीना बोली, वो जो जैतून का इकलौता दरख्त है, जहां फाख्ता रहती थी, वहां शिकारियों ने पड़ाव डाला था। जैतून के साये में बैठते थे और वहीं आग जलाकर खाना पकाते थे। जैतून का दरख्त झुलसने लगा। आग की हद्दत से बी फाख्ता का घोंसले में रहना मुमकिन ना रहा। सोचा, अब कहीं और बसेरा करते हैं। जैतून की शाख चोंच में दबाई। परवाज के लिए पर तौले ही थे कि एक शिकारी की नज़र इस पे पड़ी। एक धमाका सा हुआ और वो तस्वीर बन गई। परिंदों ने ये खबर सुनी तो दिल गिरफ्ता हुए। अब हर शाम इस तरह की होलनाक खबरें आती रहते।
दूसरे रोज़ हसब मामूल फिर मीना आई कहने लगी, आज मैंने एक अजीब माजरा देखा। सब परंदे उसकी बात गौर से सुनने लगे, निन्हे परंदे भी। एक शख्स देखा कि उसके साथ पिंजरा और संदूकची भी थी। उसके सधाए हुए तोते उसके हाथ पर बैठे थे, जो उसकी तरह बोलते थे और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते थे। वो एक दरख्त के नीचे ठहर गया। आसपास दरख्तों पर काफ़ी तादाद में तोते मौजूद थे। उस शख्स ने मियाँ मिट्ठू से कहा, तोतों के गूल में जाओ और उन्हें भी अपने साथ ले आओ। मैं उन्हें बोलना और करतब दिखाना सिखाऊंगा। मिट्ठू दरख्त पे जा बैठा और बोलने लगा। दूसरे तोतों ने जो सुना कि है तो तोता मगर बोलता शिकारियों की तरह है, तो एक बुढ़ा तोता आया और कहने लगा, टें टें टां, हमें ये सबक मत पढ़ाओ और अपनी ज़बान में बात करो। तिकरार बढ़ी। दूसरे तोते भी जमा हो गए और चूंचे मार मार कर मियाँ मिट्ठू को जख्मी कर दिया। वो आका के पास वापस आ गया। इस शख्स ने दूसरे मियाँ मिट्ठू से कहा, बेटा तोप चलाओ। मिट्ठू बेटा ने चूंच से खिलौना तोप आगे सरकाई, पटाखा रखा और दाग दिया। अब इस शख्स ने दोबारा मियाँ मिट्ठू को गोल में भेजा कि जाओ और इनसे कहो कि हमारी इताअत कबूल कर लें। मियाँ मिट्ठू फिर पहुंच गए और आका का सबक दोहराने लगे। अब के दफा तोतों ने इतना मारा कि लहुलहान कर दिया। आका ने हरबा नाकाम होते देखा तो इसको छोड़कर चल दिया। मियाँ मिट्ठू को यह उम्मीद न थी कि आका इस हाल मीन छोड़कर चला जाएगा। जख्मों से निढाल था, कुव्वत परवाज न थी, मगर हिम्मत करके आका के पीछे आ उड़ा और लड़खड़ाता हुआ इसके हाथ पर बैठ गया, जहां तोपची मिट्ठू पहले से मौजूद था। बैठा और अपने आका के चेहरे को गौर से देखने लगा। हैरान हुआ और बोला, आका तुम्हारी आंखें तोते जैसी हैं। मियाँ मिट्ठू की ज़बान से यह इंकशाफ सुना तो इसकी आंखें फटी की पटी रह गईं और हाथों के तोते उड़ गए। आशियाँ बदोश परिंदे परेशान हाल इधर उधर उड़ते फिरते थे। महफूज जंगल को ना जाने किसकी नज़र लग गई। अब कहीं भी सुकून न था। खूबसूरत और खुशहाल परिंदे कम होते जा रहे थे। चील, कौवे और गिद्धों की आबादी बढ़ती जा रही थी। एक बार फिर परिंदे पीपल के दरख्त पर जमा हुए। मुअम्मर परिंदे ने गोल से मुखातब होकर कहा, एक ज़माना था जब ये जंगल महफूज जंगल नहीं कहलाता था, मगर शिकारी यहाँ कदम रखते हुए घबराते थे। जानते हो क्यों? उस वक्त यहाँ जंगल के बादशाह का कानून चलता था। बादशाह खुद शिकार ज़रूर करता था, लेकिन अपनी ज़रूरत के मुताबिक और सिर्फ बड़े जानवरों का। कभी शेर को बटीर या पिद्दी का शिकार करते नहीं देखा। हवाओं के दौश पे परवाज करने वाले पंछी कभी यूं बेचैन न हुए थे। उल्लू टुंड पे बैठा सब कुछ सुनता रहा, लेकिन कुछ न बोला। कुछ परिंदों ने फैसला किया कि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर दूसरे जंगलात की तरफ उड़ान करेंगे। परिंदों की काफ़ी तादाद कूच कर गई। अपनी आरजुओं के जंगल को खैर बात कहते हुए आंखें नम थीं और दिल उदास। जाते जाते अलविदाई तायराना नज़र डालने के लिए पलट के देखा, जो परिंदे बाकी रह गए थे वो सहमे हुए अपने घोंसले में बैठे हुए थे। जंगल साएं साएं करता था और अब वहां उल्लू बोल रहा था। आशियां बदूश परिंदे सन्नाटे और खौफ के जंगल में भटकते फिरते थे। कुछ अरसे बाद जाने वाले परिंदों में से चंद वापस लौट आए। उनकी वापसी पर महफूज जंगल के परिंदे बहुत खुश हुए। इन्हें वापसी पर मुबारकबाद दी। इनसे दूसरे जंगलों के हालात मालूम करने के लिए तय हुआ कि बारी बारी एक परिंदा हर शाम अपने देखे हुए वाक़यात बयान करेगा। मुर्गाबी ने कहा, मैं एक जगह उड़ता चला जा रहा था। देखा कि मुझसे ऊपर बहुत बड़े बड़े परिंदे उड़ रहे थे। सख्त गर्मी का आलम था। हमेशा सुनते आए थे कि गर्मी ज़्यादा होती है तो चील अंडे छोड़ देती है, लेकिन ये परिंदे अंडे छोड़ते थे तो ज़मीन पर धमाके होते, आग के शोले भड़कने लगते और जो भी उनकी ज़िद में आता तहस नहस हो जाता। बूढ़े परिंदे ने कहा, हाँ बेटा, ये इंसान के अपने बनाए हुए परिंदे हैं जिन्हें वो खुद ही उड़ाता है और अपनी नस्ल की तबाही के सामान करता है। नन्हे परिंदों ने यह वाक़या सुना तो उन्हें वो चील याद आई जो उनके भाई को अपने पंजों में दबोच कर ले गई थी। ये उससे ज़्यादा खूनख्वार चील है, जो अंडा छोड़ती है तो शोले और तबाही जन्म लेती है। दूसरी शाम काज की बारी थी। सब उसको सुनने के लिए बेचैन थे कि बड़ी दूर दूर तक परवाज़ करता है और दूर की कौड़ी लाता है। उसने कहा, मैं यहाँ से रुखसत हुआ तो पहाड़ों से गुजरा। देखा कि बर्फानी रिछ है। वो पहाड़ों से उतर कर मैदान में आना चाहता है, लेकिन पहाड़ियाँ बहुत ढलवान हैं, बार बार लुढ़कता है। झुंझला के अपने हाथों से सेना पेटता है और चिंघाड़ने लगता है। और आगे चला तो देखा कि एक जंगल है जहाँ हाथी रहते हैं। हाथी वाले बड़े खुश हैं और सफ़ेद हाथियों को भी पाल रहे हैं, मगर अबाबिलों को भूल गए हैं। और आगे चला तो सेहरा था।
नखलिस्तान में कुछ लोग इस्तराहत फरमा रहे थे। उन्होंने हाथी वालों का दिया हुआ ज़ेरा ऊँटों के आगे रख दिया और घोड़े बेच कर सो गए। बूढ़े परिंदे ने ये सुना तो हैरत से बोला, ऊँट और ज़ेरा, क्या कह रहे हो काज भाई? काज बोला, मैंने ये सुना है कि यही सवाल उनसे एक गिद्ध ने किया था। एक ने कहा कि अभी उजाला है, हमें सफ़र शुरू कर देना चाहिए। दूसरा इसरार कर रहा था कि शाम होने दो, जब सितारे निकल आएंगे चलेंगे कि सितारे मंजिलों की सिमत बताते हैं। दूसरा बोला, सितारे मंजिलों की समत नहीं बताते, ये तो सिर्फ सफ़र के इस्तारे हैं, रोशनी भी मुस्तार लेते हैं। सितारों पे भरोसा करने वाले दिन के उजाले में राहें गुम कर बैठते हैं। जगह बदलते हुए टीले और शराब इनका मुक़द्दर बन जाते हैं। आओ उजालों के मुसाफिर बनो, कभी नहीं भटकोगे। काज की दास्तान ख़त्म हुई, सब अपने अपने घोंसलों में चले गए। तीसरी शाम भी मीना की बारी थी। उसने अपने चश्मदीद वाक़ियात सुनाते हुए कहा, मैं एक ऐसे जंगल से गुजरी कि अजब जंगल था। दरिख्तों की जगह इमारतें उग रही थीं। वहाँ तनोमंद लोगों का एक गिरोह था। कुछ ने सफ़ेद अबाएँ पहन रखी थीं, कुछ ने सियाह अबाएँ पहन रखी थी और सियाह व सफ़ेद के मालिक बन बैठे थे। वो आगे बढ़े तो लोगों ने पगड़ियाँ पेश कीं। जो आगे थे उन्होंने पगड़ियाँ सरों पे रख लें और आगे बढ़ते गए। पीछे रह जाने वालों ने उनकी पगड़ियाँ उछालें और अपने सरों पर रख लें और मज़ीद आगे बढ़े। मैं भी आगे बढ़ा। देखा तो अजब तमाशा था। एक सुरखाब अपने ही लहू में सुर्ख बेआब तड़पता था और वही लोग सुरखाब के पर नूच कर अपनी पगड़ियों पर सजा रहे थे। मैंने जो ये माजरा देखा तो वहाँ से खिसक लिया। परिंदों ने एक गहरी सांस ली, पर फड़फड़ाए और कहने लगे कि अब दुनिया का कोई जंगल महफूज नहीं है, कहाँ जाएं? ये कहकर सब अपने अपने घोंसलों में चले गए। नन्हे परिंदों ने चुपके चुपके सरकते हुए गर्दन बाहर निकाली। इधर उधर देखा, मशरिकी उफ़िक़ सुरख हो रहा था। मगरिब की तरफ देखा तो जर्द था। युकायिक दोनों तरफ से आंधियां चलने लगें। कभी दाएं बाजू से थपीड़े आते थे, कभी बाएं बाजू से। हवाएं पूरी ताकत से टकराएं तो हवा का बहव्वर बनकर गहुनस्ले अपने मकीनों समेत उड़कर बहव्वर में चक्कर खाने लगे। तिनका तिनका अलग होकर बिखर गया। पर पहड़ पहड़ा के तवाज़ुन कायम करना चाहा, लेकिन बेसौद। खौफ से आंखें बंद कर लें, ये सोचकर पांव ज़मीन से लगेंगे तो खोल दूंगा। लेकिन भंवर था कि वजूद की नफ़ी का सफ़र था, ख़त्म होता ही न था। न जाने इस कैफियत में लम्हे बेते के दिन, साल या जग बस नीचे गड़ता ही चला जाता था। चकराता हुआ पांव ज़मीन को छूते ही न थे। घबरा के आंखें खोल दें। नीचे देखा, ज़मीन नहीं थी। ऊपर देखा, आसमान भी नहीं था।